and everyone. In this uncertain environment of pandemic, it is important that learning continues, even if it can't happen in person. That's why BCIP is providing access to expert faculty and best practices. A very good afternoon to one and all present here. I, Dr. Priyanka Sharma, Assistant Professor, Banarsi Das Chandiwala Institute of Physiotherapy, on behalf of whole BCIP family, welcomes each and everyone present here to the second webinar from the webinar series started by BCIP with the sole motto of making learning better. Our eminent speaker for today is Dr. Shweta Khurana. Hello everyone. Dr. Khurana is Chief Physiotherapist at Anodyne Spine and Fit Life Clinic. She is specialized and expert in spinal manipulation, manual therapy, and soft tissue manipulation. She is not only an expert in her field, but also makes sure that her patients are treated with complete compassion and dedication, which makes her an outstanding clinician as well. She, along with her other team members, have treated many cases successfully with the astute judgment of the condition who have been advised surgery, such as disc prolapse and other spine related severe conditions. The topic of her discussion for today is unwrapping herniated disc, clinical correlations and physiotherapy management. We welcome you, ma'am. Thank you, ma'am, for a wide, vivid description. Thank you so much. So it's a pleasure for me to come here and just speak over my experiences. So we will start over the herniated disc, as ma'am told, and gradually we'll cover the various topics. And at the end, if you all have any questions, we can all solve them. And whatever queries you have, maybe we can solve it at the end. Because see, theory, maybe I think all of you must be studying from your books and all, but when you come for the patient treatment, it's a different approach, because patient will complain of different symptoms, everything. So we'll start with the anatomy and we'll gradually go, okay, what is exactly is disc herniation. So this is our spine. So spine, consists of individual bones, which we called as vertebra. Now each vertebra, you can see white one, each vertebra. We have 7 cervical, 12 thoracic, and 5 lumbar vertebra, and the sacrum is fused. So each vertebra is each vertebra is enclosed by a spinal canal which surrounds the spinal cord, which runs along the length of the spinal cord. Now on each side we can see this green thing. These are the spinal nerves which exit through neural foramina, which are very small holes which we cannot see here, but maybe you will be seeing in your vertebra. So here we have the neural foramina through which the spinal nerves exit. And in between each vertebra we have this a transparent layer which we called as disc, and which is basically a shock absorber for all body movements. Now what happens? This is a vertebra, this is the spinal nerves, this is the disc, which acts as a cushion. It's a flexible pad, and we will discuss its anatomy later on, but this is just a brief introduction. Now lumbar disc pressure can change by 50% when we change over from standing to bending. That's why we tell many of our patients to not forward bend, because disc pressure changes by 50. And it changes, this is a fact, that it changes by 80% when we go from a standing to a sitting position without a back support. I'm not talking about with back support. Without a back support, the disc pressure will change by 80%. So that much load the disc has to undergo. So now the disc consists of nucleus pulposus, which is a soft gelatinous material in the center, and a tough outer layer which is called the annulus fibrosus. And then we have cartilaginous end plates. I'll share the slide share. So उसमें मैं एक बार हम जो सारा जो एक बार फिर से nucleus pulposus, and this is just a brief description. In detail we will discuss in that. So during any traumatic injury, what happens?
जब आपको एकदम से कोई झटका लगा, आप एकदम से फॉरवर्ड बेंड हुए, या कार ड्राइव करते हुए भी कई बार लोगों को हो जाता है, एकदम से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ नहीं नॉर्मल आप कोई जमीन से चीज उठाने भी उठते हैं, तो वो भी हमारे डिस्क को एकदम से प्रेशर देता है। उसमें क्या होता है कि जो डिस्क होती है वो पीछे की तरफ इट प्रोट्रूड्स बैकवर्ड्स, एंड आफ्टर प्रोट्रूडिंग बैकवर्ड्स इट कॉजेज टीयर्स, स्मॉल टीयर्स। और जैसे जैसे वो टीयर बढ़ते जाते हैं, जो हमारा एन्युलस फाइब्रोसस होता है वो डिटियोरेट करता है, न्यूक्लियस पल्पोसस अपनी जो शेप है वो लूज कर देता है, एंड डिपेंडिंग कि वो किस लेवल पे होता है, मोस्टली जो प्रोन एरियाज है वो L4 L5 या L5 S1 है, बिकॉज वहां पे जो डैमेज है सबसे ज्यादा होता है। सर्वाइकल एरिया में C5 C6 एंड C6 C7 होता है, बाकी जगह पे होता है डैमेज, बट दैट इज वेरी रेयर। मतलब मुझे अभी तक कुछ खास नहीं दिखा L3 L4 वर्टिब्रा में, फिर भी हमारे पास पेशेंट्स आए हैं, बट मोस्टली L4 L5 एंड L5 S1। सो ये डिस्क हमारी क्या है, बाहर की तरफ निकल जाती है स्पाइनल नर्व को इम्प्रेंच करते हुए, और जो बैकवर्ड्स जब हम प्रोट्रूड कर जाती है उसको हम सेंट्रल प्रोट्रूजन कहते हैं। और जो न्यूरल फोरामिना, जो जहां से स्पाइनल नर्व जा रही है, स्मॉल बिल्कुल छोटे छोटे होल है न्यूरल फोरामिना, वहां से भी कई बार डिस्क बाहर निकलती है, तो उसमें जो है वो हमारा लेटरल प्रोट्रूजन होता है। We'll start with PIVD, just a general description. ये मेरे बारे में एक्चुअली वो पहले नहीं हुआ। I have done my Bachelor of Physiotherapy from Biomedical Sciences Research in Dehradun in 2003, and then my professional journey started in 2003, which I did through Association of St. Stephen's Hospital under guidance of Dr. Koshi. Then I have also worked as a consultant physiotherapist in VLCC Greater Kailash and New Friends Colony for 4 years. Then after gaining all these experience, then we are a team, me and my husband both are physiotherapists. We together managed Khurana Physiotherapy Center. In the journey of last 15 years, we have treated more than 5,000 patients. But this Khurana Physiotherapy Clinic we started in 2005, and now we have started last year with one clinic in Lajpat Nagar 1, which is by the name of Anodyne Spine and Fit Life Clinic, as our mostly focus is on the spine. Now this comes the anatomy of intervertebral disc, as because उसमें मॉडल में इतना क्लियरली नहीं आ रहा था, so we'll see the intervertebral disc. इंटरवर्टिब्रल डिस्क में आपने देखा ये ईच वर्टिब्रा के बीच में आईवी डिस्क दिखाई हुई है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में जो है, जो बीच का पार्ट है, दैट इज न्यूक्लियस पल्पोसस, एंड जो आउटर कवरिंग है दैट इज द एन्युलस फाइब्रोसस, एंड उसके साइड में हमारी स्पाइनल नर्व्स जा रही है। देन देयर आर 6 डिफरेंट लिगामेंट्स which are covering the intervertebral disc. The ligaments are the anterior longitudinal ligament, जो आपका आता है anterior side of the disc में आता है from the anterior, और जो lateral surface होता है vertebral column का, जो sacrum से लेके C2 vertebra तक। देन आपका पीछे की तरफ आप देखेंगे posterior longitudinal ligament है, वो posterior aspect पे आता है from C2 to sacrum. Then we have the ligamentum flavum, वो एक लैमिना से दूसरे लैमिना में from C2 to a different lamina cover करता है। Then we have a interspinous ligament, जो आपकी एक fibrous sheet है, जो different spinous, जो एक spinous process दूसरे spinous process of adjacent vertebra को connect करता है। Then we have the supraspinous ligament, which is a strong cord-like structure which which connects tip of the spinous process. जो interspinous होता है वो spinous process के बीच में जाता है, जो हम देखेंगे आपका supraspinous, इसमें supraspinous वो spinous process ये रहा, उसके बिल्कुल टिप पे जो है वो supraspinous है from C7 to L3 और L4, और cervical region में ये ligamentum nuchae बन जाता है। तो हमारा हो गया एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, आपका लिगामेंटम फ्लैवम। बहुत सारे केसेस में लिगामेंटम फ्लैवम की भी स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम लिगामेंटम फ्लैवम हाइपरट्रोफी कहते हैं। फर्स्ट वी वर टॉकिंग अबाउट एन्युलर, सो अगेन एक बार हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा हमारा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, जो आगे की तरफ जा रहा है, दैट इज एंटीरियरली, और लेटरली आता है सैक्रम से लेके C2 तक। फिर हमारा है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, जो बिल्कुल उसके एंटीरियर के पीछे की तरफ आ रहा है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट C2 से लेके सैक्रम तक। फिर हमारा है लिगामेंटम फ्लेवम। लिगामेंटम फ्लेवम इज एक छोटा सा लिगामेंट है, मतलब एक लैमिना से दूसरे लैमिना से फ्रॉम C2 टू द सैक्रम। ये सारे लिगामेंट C2 से स्टार्ट हो रहे हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा से, और सैक्रम तक नीचे जा रहे हैं।
देन हमारा ये है इंटरस्पाइनस लिगामेंट। इंटरस्पाइनस क्या, ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस है, ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस है। इन दोनों के बीच में जो है ये इंटरस्पाइनस प्रोसेस लिगामेंट आ रहा है। जो सुप्रास्पाइनस है, क्योंकि टिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस है, तो ये सुप्रास्पाइनस जो है वो टिप पे आएगा और C7 से शुरू होगा और L3 या L4 तक जाके ये कनेक्ट होता है। उसके बाद हमारा इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट है, जो इस फिगर में नहीं दिखा रहे, बट वो जो पीछे की तरफ जो स्पाइनस प्रोसेस के साइड्स पे जो हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस जा रहे हैं, वो उनके बीच में होता है ट्रांसवर्स ligament. You can once more see, and I'll see the next slide. Now we come to our intervertebral disc. अब intervertebral disc में होता क्या क्या है? Intervertebral disc जो है वो 3 कंपोनेंट से बनी है, न्यूक्लियस पल्पोसस, एन्युलस फाइब्रोसिस एंड जो उसकी कार्टिलेज एंड प्लेट्स कह लो या वर्टिब्रल एंड प्लेट्स कह लो, बिकॉज कार्टिलेज एंड प्लेट्स बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज एंड हाइलिन कार्टिलेज, तो उसको कार्टिलेज या फिर वर्टिब्रल एंड प्लेट्स भी हम कह सकते हैं। ये सारी तीनों चीजें जो है हमारी, बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ वाटर, कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड इसमें दिखा देती हूँ। ये जो हमारी तीनों चीजें हैं, दे आर मेड अप ऑफ वाटर, कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। जो हमारा फ्लूइड है, जो वाटर कंटेंट है, और प्रोटियोग्लाइकेंस है, वो न्यूक्लियस पल्पोसस में जो है वो हमारे हाईएस्ट कंटेंट में होते हैं, और एन्युलस फाइब्रोसिस और वर्टिब्रल प्लेट्स में वो थोड़ी कम क्वांटिटी में होते हैं। कोलेजन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो वर्टिब्रल एंड प्लेट में ज्यादा होता है और न्यूक्लियस पल्पोसस में लो होता है। इसीलिए जब हमारी डिस्क हर्निएशन होती है तो हम हमेशा कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उसका पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिकॉज 70 to 90% ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस इज मेड अप ऑफ वाटर, और उसके बाद प्रोटियोग्लाइकेंस ऑल्सो मेक अ लार्ज क्वांटिटी 65%। तो ये जो वाटर है, प्रोटियोग्लाइकेंस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और इसीलिए उसकी एक प्रॉपर्टी है, जैसे न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो एक तरीके का बैलून है, जब हम उसको कंप्रेस करेंगे एंड वो डिफॉर्म कर जाएगा, बट जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा न्यूक्लियस पल्पोसस की वॉल जो है वो सारी डायरेक्शंस में स्प्रेड करेगी। इसीलिए जब डिस्क हर्निएशन होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आता है, वो हम आगे भी बात करेंगे, बट बेसिकली ये उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें एक वाटर बैलून की तरह है कि जब भी उसको कंप्रेस किया वो वापस वो डिफॉर्म हो गया, और जैसे ही उसका प्रेशर बढ़ता है वो न्यूक्लियस पल्पोसस जो है उसकी सारी वॉल्स को स्ट्रेच कर देता है, और इस वजह से डिस्क जो है हर्निएट कर जाती है। तो ये हमारा बीच में है, आप देखेंगे ये न्यूक्लियस पल्पोसस, उसके बाद ये हमारी कार्टिलेजिनस एंड प्लेट्स, एन्युलस फाइब्रोसिस, ये उसके बीच में चैनल्स हैं, ये एंड प्लेट्स ये रही जो वर्टिब्रा के बीच में आती है एंड प्लेट्स। अगेन वी कैन सी दिस इज अगेन ये जो थोड़ा सा साइड व्यू है, न्यूक्लियस पल्पोसस, एन्युलस फाइब्रोसिस, ये आपकी वर्टिब्रल बॉडी एंड दीज आर द कार्टिलेजिनस एंड प्लेट्स। अब नाउ दिस इज जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया, द सेम थिंग कि न्यूक्लियस पल्पोसस जो है हाईली हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर है, उसमें 88% वाटर है, प्रोटियोग्लाइकेंस है, उसके बाद उसमें प्रोटियोग्लाइकेंस की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्ड्रोइटिन्स है, सल्फेट्स है, सो उसमें कोलेजन जो है वो कम है, प्रोटियोग्लाइकेंस ज्यादा है, और कंप्रेसिबिलिटी जैसे कि हमने बात करी, इट इज जस्ट लाइक अ वाटर बैलून, बहुत ज्यादा जल्दी कंप्रेस कर जाता है और फिर उसका बाहर जो है वॉल सारी स्ट्रेच हो जाती है। अब हमारा है ये एन्युलस फाइब्रोसिस। एन्युलस फाइब्रोसिस जो है उसमें जो है हमारा 60 to 70% वाटर है, लेस देन न्यूक्लियस पल्पोसस, 50 to 60% कोलेजन है, और प्रोटियोग्लाइकेंस जो है उसका रेशियो थोड़ा कम है, इट्स लो, उसमें अराउंड 20% प्रोटियोग्लाइकेंस है। तो उसमें ये एक रिंग की तरह होता है। एन्युलस फाइब्रोसिस है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं, मतलब एक के बाद ऐसे सर्कल्स बनते हैं, ये जैसे ये एक सर्कल फिर दूसरा सर्कल, ऐसे इसमें डिफरेंट रिंग्स बनती है, 2 4 5 ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं जो वो आपस में टाइड अप होती है, दे आर इंटरवोवन। और जैसे जैसे जब हमें अंदर से लोड, जब डिस्क हर्निएट करती है तो न्यूक्लियस पल्पोसस से लोड आता है, वो आगे जाके एन्युलस फाइब्रोसिस पे आ जाता है, जिसकी वजह से जो डिस्क हर्निएशन होती है। और न्यूक्लियस एन्युलस फाइब्रोसिस की ये क्वालिटी है कि वो एक्सटेंसिबिलिटी है, मतलब न्यूक्लियस पल्पोसस उसको प्रेशर देता है, पर इतना प्रेशर होना चाहिए कि वो बाहर निकल पाए, क्योंकि उसकी जो एन्युलस फाइब्रोसिस की प्रॉपर्टी है, इट इज स्ट्रेंथ है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ऐसे नहीं है कि एकदम से लगा और वो बाहर निकल जाएगा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये हमारी नॉर्मल लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप ए देखेंगे, ये नॉर्मल हेल्दी डिस्क है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो बाहर रिंग्स दिख रही है आपको, ये एन्युलस फाइब्रोसिस है। तो देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड थ्रू आउट द एन्युलस।
जैसे जैसे हमारी डिस्क डीजनरेशन करेगी, उसका जो है पानी की क्वांटिटी, न्यूक्लियस जो है अपनी कुशनिंग, जो वो कुशन एक एम्बेडेड है एन्युलस फाइब्रोसिस में, वो उसकी कम होती जाएगी और अनइक्वल लोड, सॉरी एक सेकंड, जो लोड है वो अनइक्वली ट्रांसमिट होगा, मतलब कहीं पे लोड ज्यादा होगा स्पाइन पे, कहीं पे होगा। इसीलिए अभी हमें जब हमारे पास डिस्क हर्निएशन होती है तो पेशेंट को कई बार बैक में पेन हो रहा है, कई बार उसके साइड्स में पेन हो रहा है, बिकॉज जो जो हमारी स्पाइन है वो पूरा वेट जो है वो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, सॉरी, वो पूरा लोड नहीं ले पा रही है, इसीलिए लोड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये हमारी बिल्कुल डीजनरेट हो गई है डिस्क, जो सी पार्ट देखा है, ये आप देखेंगे इसमें न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आ रहा है। उसमें क्या है कि अब वो जो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जो न्यूक्लियस है, उसने लोड बिल्कुल एन्युलस पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिर्फ यहाँ और यहाँ आ रहा है। ये जो साइड्स पे डिस्क, ये न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आ गया तो कोई लोड जो है ट्रांसमिट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारी डिस्क हर्निएशन होगी। अब डिस्क हर्निएशन में बेसिकली होता क्या है, 4 टाइप्स के टियर होते हैं। जब अभी हम आगे भी बात करते हैं, पहले अब क्योंकि ये डायग्राम खुला हुआ है तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टियर जो होते हैं। सबसे पहली चीज है एन्युलर टियर, जो 60 to 70% हमारी पॉपुलेशन में आपको दिखेगा। एन्युलर टियर में बेसिकली क्या होता है कि जो बाहर ये जो हमारी एन्युलर रिंग्स है, जो एन्युलर फाइब्रोसिस की, वो सिर्फ टियर होती है। न्यूक्लियस पल्पोसस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इंटैक्ट रहता है। सिर्फ जो बाहर से हमारी एन्युलर रिंग्स है वो टियर्ड होते हैं, और इतना ज्यादा क्रॉनिक लो बैक एक होता है क्योंकि यहाँ पे सारी हमारी नर्व एंडिंग्स होती है। और मोस्टली ये आपको तभी मिलेगा जब एकदम से हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। ये सडन प्रेशर से होता है, ये धीरे धीरे डीजनरेशन नहीं हो रही है, ये एकदम से प्रेशर की वजह से हो रहा है, और मोस्टली केसेस एन्युलर टियर होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोट्रूजन, जो हमारी होती है डिस्क बल्ज। ये आपको 70 to 80% केसेस को मिलेगा जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में आएंगे। प्रोट्रूजन में क्या होता है कि ये जो बाहर की एन्युलर रिंग्स है ये बिल्कुल इंटैक्ट होगी। जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बाहर निकलना शुरू होगा, बल्ज करेगा, पर एन्युलर रिंग्स को तोड़ेगा नहीं। इट विल नॉट ब्रेक एनी ऑफ द एन्युलर रिंग्स। दैट इज द सेकेंड थिंग, दैट इज कॉल्ड द प्रोट्रूजन। ये मोस्टली ये भी काफी बार मिलता है हमें 70 to 80% केसेस में। फिर हमारी आती है एक्सट्रूजन या हर्निएशन। एक्सट्रूजन या हर्निएशन में क्या होता है कि एन्युलर रिंग्स, न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकल जाता है, एन्युलर रिंग्स को फाड़ते हुए बिल्कुल उसको ब्रेक कर देता है, उसका सारा पानी भी बाहर आ जाता है। जो न्यूक्लियस पल्पोसस का पोर्शन है मतलब वो इंटैक्ट रहता है, पर एन्युलर रिंग्स की तरफ वो बाहर आ जाता है। बट जो हमारी फाइनल स्टेज है, जो बहुत ही कम होती है, जिसमें सर्जरी ही इन्वॉल्व होती है, जो 10% होती है सिक्वेस्ट्रेशन, उसमें क्या है, ये जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है वो भी बाहर निकल आता है और उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पाइनल कैनाल जो है वो बिल्कुल नैरो हो जाती है। 4 टाइप्स ऑफ टियर करें, एन्युलर टियर, प्रोट्रूजन और डिस्क बल्ज, एक्सट्रूजन एंड सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें कोई भी आगे कुछ भी डाउट होगा, आगे अभी और पिक्चर्स भी आएंगी, उसमें आएगा। ये आ गई आपकी, देखिए ये है डिस्क हर्निएशन। ये आपका सिर्फ क्या हुआ, डीजनरेशन हुआ। प्रोलैप्स में क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आ रहा है पर एन्युलर रिंग्स जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये आया हमारा एक्सट्रूजन की स्टेज, उसमें एन्युलर रिंग्स भी टूट गई और न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आ गया। सिक्वेस्ट्रेशन में क्या है, इसके छोटे छोटे, ये देखिए ये 2 तो आपको छोटे पार्ट दिख रहे होंगे, ये न्यूक्लियस पल्पोसस ब्रेक हो गया, जो अभी बताया सिक्वेस्ट्रेशन, और ये कैनाल में आ गया, हमारे स्पाइनल कैनाल में, इसकी वजह से हमें ब्लॉकेज होगी। तो हमारी क्या है, अर्ली स्टेज पे क्या है, जो डिस्क है हमारी स्ट्रेच हुई, बट वो स्ट्रेच होके अपनी नॉर्मल शेप में रिटर्न नहीं होती इतनी आसानी से, इवन इफ द प्रेशर इज रिलीव्ड। एक बल्ज स्लाइटली रहता ही है। जो इनर डिस्क के फाइबर्स हैं वो भी टॉर्न होते हैं, बट जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो सारा की सारा बाहर की तरफ, उसके जो उसका जो मटेरियल है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। प्रोट्रूजन पे क्या है कि बल्ज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आता है, जो सॉफ्ट जेली सेंटर है वो बाहर की इनर एज मतलब आता है बाहर की तरफ पे, पर वो एन्युलर फाइब्रोसिस से बाहर नहीं निकलता, उसी के अंदर रहता है। और एक्सट्रूजन में जो है आपका, आप देखेंगे ये लिखा है जैसे सॉफ्ट जेली जो है वो कंप्लीटली बाहर आती है और जो फाइबर्स है वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। सिक्वेशन में जो बाहर आके जो डिस्क है, जेली मटेरियल जो है ब्रेक करता है और सराउंडिंग एरिया में आ जाता है, जिसके वजह से यूजुअली हमारी कैनाल नैरोइंग होती है। एंड तो इसीलिए ये है हमारी कॉमन साइट्स
T5, C6, L4, L5, L5, S1। नाउ ये हमारा सेम दोबारा से यही चीज आ गया कि हमारे वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में डिस्क है। जो डिस्क है वो एक तरीके की हमारी जो है शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, जेली मटेरियल है सराउंडेड बाय अ फाइब्रस रिंग। और जब भी जो रिंग है उसमें कोई डिजीज हो जाती है या कुछ डीजनरेशन होती है, जो हमारा सब्सटेंस है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है एंड इट कॉजेज प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स अकम्पनिंग नर्व रूट्स। अब ये होता क्यों है हमारा, बेसिकली डिस्क बल्ज होता क्यों है, किस वजह से होता है? एक तो हमारी फर्स्ट थिंग है, अचानक से कोई आपको ट्रॉमा हो गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उठ गए, बैठ गए, सडनली आपकी जो स्पाइन है वो इतनी हेल्दी नहीं था, वो इतना प्रेशर नहीं ले पाए। पुअर न्यूट्रिशन, कैल्शियम लेवल कम है, विटामिन डी कम है, ऑलरेडी आप अनहेल्दी है तो न्यूट्रिशन जो है वो कम है। हेल्थ हैबिट्स है, स्मोकिंग है, आपकी सिटिंग जॉब है, वो है। अक्यूमुलेटेड ट्रॉमा, स्पोर्ट्स इंजरीज में स्पोर्ट्स पीपल को कई बार हो जाता है, एकदम से झटका लगा कुछ भी खेलते हुए, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी गेम खेलते हुए, जो ट्रॉमा होता है उसकी वजह से हो जाता है। बायोमैकेनिकल फैक्टर्स है कि आपकी डिस्क में क्या है कि कई बार जो है कि सिर्फ पोस्चर की वजह से होता है कि एकदम से जो है आपका जो स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस की जो है अलाइनमेंट थोड़ी वो खराब हो जाती है, उस वजह से बायोमैकेनिक्स जो स्पाइन की चेंज हो जाती है, वो एक वाइड टॉपिक है, उसमें जो है डिस्क herniation हो जाता है। पोस्चर बेसिकली क्योंकि आजकल सब एमएनसीज में काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली रेपिटेटिव प्रेशर आता है, देयर इज सेडेंटरी लाइफ में, कंटिन्यूअसली उस पर प्रेशर आता रहता है एक ही चीज पे, शॉक मतलब आपका कंटिन्यूअसली एक चीज पे प्रेशर आता है, इट इज नॉट रिलीव्ड। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको जब कंटिन्यूअसली बैठना है तो 1 घंटे बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, बाहर करिए, इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये आपके डिस्क पे अनड्यू प्रेशर कॉज करता है। आपका कंटिन्यूअसली सिटिंग जॉब है तो जो आसपास की मसल्स हैं वो भी वीक हो जाएंगी, तो उसमें कुछ रह ही नहीं जाएगा, तो वो कैसे मतलब मोस्टली एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, पीपल डू कम जो आईटी सेक्टर में, और वो क्योंकि उनका कंटिन्यूअसली सिटिंग या कि वो डिस्क पे कंटिन्यूअस प्रेशर आता है, वो डी का पानी खत्म होना शुरू हो जाता है। और विद एज भी एक फैक्टर है, क्योंकि एज के साथ क्या होता है, डिस्क की हाइट ग्रेजुअली कम होती जाती है, तो इस वजह से भी जो है वो हर्निएट करना शुरू कर जाती है। एक तो ट्रॉमा हमारा अचानक से, वो ऑपरेटिव माइक्रो ट्रॉमा यही है जो कंटिन्यूअसली बैठने की वजह से हो गया, या बार आप एक करते रहे, बार बार झुकते रहे, एक बारी में नहीं हुआ, बार बार एक ही चीज करते रहे, टेंशन क्रिएट हो गई, इस वजह से भी है कि मैकेनिकल एक्टिविटीज बार बार आप फ्रीक्वेंट बेंडिंग है, फ्रीक्वेंट लिफ्टिंग है, हेवी ऑब्जेक्ट्स आपको उठाने हैं बार बार, तो इसलिए जैसे हमारे जैसे जो लेबर क्लास है उनको बार बार हेवी चीज होने के ज्यादा चांसेस है। अभी मैंने बात करी क्योंकि वो उनकी बैक मसल्स और नेक मसल्स इतनी वीक हो जाती है, तो इसलिए वो डिस्क हर्निएशन के ज्यादा प्रोन होते हैं। ट्रोमैटिक इंजरी, एकदम से आपने कुछ उठाया या कोई स्पोर्ट्स खेले। ओबेसिटी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्यादातर आपको मिलेगा बहुत ही ओबीस पेशेंट, बिकॉज इतनी वो मोटे होते हैं कि उनकी जो स्पाइन है वो जो है वो अपने इंटैक्ट, तो डिस्क हर्निएशन होने के ज्यादा चांसेस है। पुअर पोस्चर, ये भी ज्यादातर आजकल है ही सही सब में, मोस्टली पीपल आर ऑन द लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, पोस्चर पुअर है, तो जो डिस्क है उसको प्रॉपर ना ही न्यूट्रिशन मिलता है, ना हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से होता है। टोबैको अब्यूज, क्योंकि अब्यूज एज यू नो किसी भी चीज के लिए टॉक्सिन्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स, आप कुछ अच्छा खा भी रहे हैं बट जो आप अगर कुछ और ऐसी गलत चीज दे रहे हैं जैसे टोबैको, अल्कोहल, तो हमारी जो बॉडी में है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से डिस्क को वो न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाएगा। आप ले रहे हैं बट इन चीजों से जो है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो डिस्क पे वो करेगा। एंड म्यूटेशन ये थोड़ा सा जेनेटिक भी होता है, कई बार जो है वो प्रोटीन्स की कोडिंग की वजह से होता है। अब हमारे ये जो है प्रोटीन, ये हमारी नॉर्मल डिस्क है, आप देखेंगे बिल्कुल ये नॉर्मल जैसे, इसमें कोई एडहेशंस या कुछ नहीं है। और ये हमारी डीजेनरेटेड डिस्क है, इसमें आप देखेंगे बीच बीच में आपने देखे क्रैक्स हैं, डीजेनरेटेड है, ये बल्ज नहीं कर रही है, ये सिर्फ डीजेनरेटेड कर रही है। डीजेनरेशन, डिस्क हाइट कम हो रही है, डीजेनरेशन कर रही है और लोड डाल रही है एन्युलस पे। ये हमारी बल्जिंग डिस्क है, ये आप देखेंगे बाहर आ है, बाहर की तरफ यहाँ से प्रोट्रूड कर रही है। हर्निएटेड डिस्क आप देखेंगे इसमें बिल्कुल ये बाहर आ रही है, एन्युलस फाइब्रोसिस को तोड़ के बिल्कुल ये हमारे स्पाइनस प्रोसेस के पास आ रही है। ये डिस्क कम हो गई है, विद एज ये हो जाता है जो मैंने आपको बताया, डिस्क की थिनिंग हो जाती है
और ये यहाँ पे डिस्क डीजनरेशन अगेन है। और कई बार क्या है कि डीजनरेशन के साथ साथ हमारे पास ऑस्टियोफाइट्स भी बन जाते हैं। तो इसीलिए बेसिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं जब एक डिस्क हर्निएशन होती है। प्रोटियोग्लाइकन कंटेंट एज जो हमारा फाइब्रोसिस क्योंकि बाहर आ गया, एन्युलस फाइब्रोसिस भी फट गया तो प्रोटियोग्लाइकन कंटेंट कम हो गया। उसके बाद वाटर लॉस हो जाता है न्यूक्लियस प्रोसेस में, तो उसकी जो है वाटर जो बाइंडिंग कैपेसिटी या हाइड्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी वो कम हो जाती है, डिस्क हाइट कम हो जाती है क्योंकि उसमें से पानी खत्म हो गया। ये या तो पानी खत्म हो जाता है जब बाहर निकल जाती है तब भी कम हो जाती है, या विद एज भी हो जाता है, या फिर सीडेंटरी लाइफस्टाइल में होगा। एंड अनइवन स्ट्रेस, क्योंकि अभी हमने जो इससे पहले एक स्लाइड शो करी थी उसमें दिखाया था कि एक नॉर्मल डिस्क में हमारा इक्वल प्रेशर आ रहा है एन्यूलस पे, बट जैसे जैसे उसमें डीजनरेशन आएगा तो अनइवन लोड आ जाएगा और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस ऑन द एन्यूलस आ जाएगा। ये अगेन द सेम डायग्राम, इसके बारे में हमने बात कर ली है तो इसलिए वील स्किप दिस स्लाइड कि डीजेनरेटिव चेंजेस होती है, न्यूक्लियस बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और एन्यूलस जो है वीक हो जाता है। एन्यूलस फाइब्रोसिस में भी क्या होता है कि जब हमारी डिस्क बाहर निकलती है तो एन्यूलस पहले तो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस तो हुआ ही हुआ, साथ में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो उसकी शेप है, न्यूक्लियस पल्पोसस ड्राई हुआ, उसकी एकदम वाटर कंटेंट खत्म हो गया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डैमेज हो गई, तो ओवर द टाइम क्या होता है एन्यूलस फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, उसकी चेंज हो जाती है शेप और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की ही कम हो जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं, दिस इज द सेम थिंग वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि जो न्यूक्लियस है कैसे डिस्प्लेस हो गया क्योंकि वो प्रेशर है उस पर और एन्यूलस बिल्कुल वीक हो गया और उसका सारा स्पॉन्टेनियसली सारा एरिया आसपास का स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट हो गया, प्रोट्रूजन हो गया, दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो इसमें ये भी हमें बताया हुआ है पीएलएल का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना मतलब आप मतलब जो हमारा अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में किया था, जैसे कोई हैवी लोड उठा रहा है या कुछ मतलब लिफ्टिंग एंड कैरिंग हैवी लोड कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि रेपिटेटिव लोड भी है और फ्लेक्स पोस्चर है, तो उसमें क्या है एन्युलस फाइब्रोसिस का पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा, फ्लूइड एक्सचेंज कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन जो डिस्क की न्यूट्रिशन है दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। ऐसी कोई आर्टरी या वो नहीं है वेन जो उसको कंटिन्यूस वो देती हो, सप्लाई देती हो, यू नो इट रिसीव्स इट्स न्यूट्रिशन वाया डिफ्यूजन, जो हमारा जो यहाँ पे जो हमने प्रोटियोग्लाइकेंस और उसको कहा इसका डिफ्यूजन होता है। और साथ में जो हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है जिसकी अभी हमने बात करी थी, वो बहुत नैरो होता है और वो इतना सपोर्ट नहीं देता इंटरवर्टिब्रल डिस्क को, जिसके जो मेन फैक्टर है हमारा डिस्क हर्निएशन का पोस्टेरोलैटरल डायरेक्शन में, क्योंकि पीएलएल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही कम है, तो वो इतना सपोर्ट नहीं दे रहा डिस्क को, तो क्या है कि डिस्क जो है हर्निएट कर जाती है पोस्टेरोलैटरल डायरेक्शन में। तो वो एक बार डिस्क बाहर आ गई है एक्सट्रूडेड, ये भी हम बात करेंगे, जब डिस्क में सिर्फ एन्युलर टियर है या प्रोट्रूडेड है वो फिर भी वापस आ सकती है, बट एक बार डिस्क एक्सट्रूडेड है वो इट कैन नॉट गो बैक, एंड जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल है वो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो न्यूक्लियस को प्रोट्रूड होने से फर्दर प्रिवेंट करे, जो तो इसलिए एक्सट्रूडेड जो डिस्क है वो अपनी जो हमारी जो नॉर्मल पेरेंट डिस्क थी जिसके साथ वो पहले लगा हुआ था उससे उसका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, और जो हमारी जो सिक्वेस्ट्रेटेड है, जो डिस्क बिल्कुल बाहर निकल गई है, वो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल के लिगामेंट के पीछे ही आ जाती है और वहां पे कैनाल में हमारा एज अ फ्री फ्रेगमेंट्स, यू नो इट इज फ्री इन द कैनाल। ये फिर से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये हमारी नॉर्मल डिस्क, आईवी डिस्क, न्यूक्लियस पल्पोसस, एन्युलस, वर्टिब्रल बॉडी, हाइलिन, जो हमारा हाइलिन और फाइब्रो कार्टिलेज है। यूजुअली जब हम यंग होते हैं तो हमारा हाइलिन कार्टिलेज ज्यादा होता है, जैसे जैसे हम हमारी एज बढ़ती है तो हमारा फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो न्यूक्लियस पल्पोसस के पास आता रहता है, और जो इंक्रीजिंग एज के साथ वो वर्टिब्रल एंटीडेट का एक मेजर कंपोनेंट बन जाता है। ये डिजेनरेटेड है, आप देखेंगे इसकी शेप, ये इसकी वर्टिब्रल बॉडी भी एकदम उसकी हाइट कम हो रही है, यहाँ पे न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो रहा है, उसका पानी नहीं है, तो ये हमारी वर्टिब्रल बॉडी है, एंड प्लेट्स है। अब ये देखेंगे नॉर्मल डिस्क, यू कैन सी दिस इज अ हेल्दी डिस्क, ये इनर जोन है एन्युलस फाइब्रोसिस का, ये आउटर जोन है, ये बिल्कुल इंटैक्ट है। जैसे जैसे डीजनरेशन हुई ये पतला होता गया, सिकुड़ता गया, और ये हमारी डीजनरेशन होगी। हर्निएटेड डिस्क में ये न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर की तरफ आ गया। स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस में ऐसा चाहिए कि इसमें क्या है कि जो हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसस जो बच गया है, जो आधा तो बाहर निकल गया, ये तो काफी सारा बाहर निकल गया, जो बच गया है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, फाइब्रोस हो जाता है, और फाइनली अंडरगोस
कैल्सिफिकेशन, और समटाइम क्या होता है एक नई बोन भी बन जाती है जहां से PLL जो है वो स्ट्रिप हुआ है एंड स्पर फॉर्मेशन. दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, यू कैन सी हियर वंस अगेन दिस जनरेशन, दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस डिजनरेशन. ये बिल्कुल हेल्दी है, ये बिल्कुल एकदम इसमें वो हुआ है और ये बाहर निकल रहा है कंप्लीट टीयर, ये हर्निएशन है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ PIVD. मोस्टली क्या सिम्टम्स है हमारे, एकदम से शूटिंग पेन आता है आपको एकदम से लोअर डिस्क में या लंबर हर्निएटेड, सिवियर लो बैक पेन. पेन जो है अगर पोस्टेरोलेटरल प्रोट्रूजन है या कोई नर्व कंप्रेस हो रही है तो पेन रेडिएट कर जाता है बटक्स पे, लेग्स पे, फीट पे. इट इज नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि हर बार होता ही होता है, कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है, बट सिवियर लो बैक पेन तो होता ही है. वॉकिंग, क्योंकि अब हमारा इतना पेन है तो वॉकिंग हमारी पेनफुल है, डिफिकल्ट है. पेन जो है हमारा कफिंग, स्ट्रेनिंग या लाफिंग से बढ़ता है. मसल जो है एकदम टाइट हो जाती है, स्पैज्म हो जाता है. एंड नर्व जो है, स्पाइनल नर्व कंप्रेस है, सारी नर्व जो हमारी, जहां से जब हमारी डिस्क पीछे निकलेगी तो स्पाइनल नर्व कंप्रेस हो जाएगी, तो देयर में बी टिंगलिंग और नमनेस इन द लेग्स और फीट. इन सब कारणों की वजह से मसल्स जो है बिल्कुल वीक हो जाती हैं. जब मसल्स वीक हो जाती है तो एट्रोफी हो जाती है. एंड जो ब्लैडर और बावल कंट्रोल है उसके पेशेंट्स हमारे पास बहुत यूजुअली कम आते हैं. वो फिर क्योंकि पहले ऑर्थोपेडिक ही देते हैं, वो नॉर्मल प्रोट्रूजन या एक्सट्रूजन में नहीं होता है, बट कुछ केसेस में जहाँ पे कॉर्डा इक्वाइना भी आ जाता है साथ में, उसमें होता है. नॉर्मली हमारे पास ये पेशेंट्स नहीं आएंगे क्योंकि वो पहले आप सर्जरी के लिए ही डॉक्टर उनको एडवाइस करेंगे. तो अब हमारे पास जब हमारी न्यूक्लियस पल्पोसस, ये बीच में रह गया था, जब हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकलता है उसकी भी डिफरेंट डायरेक्शंस होती है. पोस्टेरो सेंट्रल एक डायरेक्शन होती है. पोस्टेरो सेंट्रल मतलब पीछे की तरफ, पोस्टीरियर, एक बार मैं पिछली वाली स्लाइड से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे जाएगा. ये हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है, जब ये बिल्कुल पीछे की तरफ ऐसे जाएगा पोस्टेरो सेंट्रल, ये हमारा होगा पोस्टेरो सेंट्रल, जहां पे सारे स्ट्रक्चर्स क्योंकि पोस्टीरियर है तो ये पोस्टीरियरली लो बैक एक कॉज करेगा. जो हमारी पोस्टेरो लैटरल है उसमें साइड्स में ये न्यूक्लियस जो है वो ये ऐसे की बजाय ये जो साइड में जा रहा है पोस्टेरो लैटरल, ये उस डायरेक्शन में जाएगा साइड में, और फिर उसमें हमारी नर्व्स भी इन्वॉल्व होगी और लेग्स तक पेन जाएगा. पैरा सेंट्रल स्पाइनल नर्व्स को इफेक्ट करता है. देन देयर इज कॉर्डल माइग्रेशन, कई बार जो है डिस्क नीचे की तरफ माइग्रेट करती है, दैट इज कॉर्डल टुवर्ड्स टेलबोन, और कई बार हमारी डिस्क ऊपर की तरफ माइग्रेट करती है, दैट इज टुवर्ड्स C2, दैट इज कॉल्ड सेफल माइग्रेशन. तो हमारी 5 टाइप्स की डायरेक्शंस होती है. ये अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस जो है, जहां पे न्यूक्लियस जाएगा वहां पे होता है पोस्टेरो सेंट्रल, पोस्टेरो लैटरल, पैरा सेंट्रल, कॉर्डल माइग्रेशन टेलबोन की तरफ, एंड सेफल माइग्रेशन टुवर्ड्स द C2. सो इसके अकॉर्डिंगली क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो जहां जहां आपकी हर्निएशन है और प्रोट्रूजन है या एक्सट्रूजन है और कहाँ आपकी हर्निएशन है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास सिम्टम्स क्या क्या आएंगे. अब मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने पहले पेशेंट को असेस करना है, उसका पोस्चर क्या है. मोस्टली आपको दिखेगा बिल्कुल रिजिड पोस्चर होगा, वो ना स्पाइन को बिल्कुल मूव नहीं कर पाएगा. स्पाइन का हमने कर्वेचर देखना है कि लॉर्डोटिक है, कि आपका फ्लैट स्पाइन है, कि जो नॉर्मल उसका कर्वेचर है, लॉर्डोसिस है, वो है कि नहीं. मूवमेंट, ट्रंक फ्लेक्शन जो होगी, आप जब आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगी. और जब हम स्पाइनस प्रोसेस को पैल्पेट करेंगे, आप देखेंगे कि उधर हम स्पाइनस प्रोसेस के लेटरली जाएंगे तो इतनी ज्यादा टेंडरनेस होगी कि हाथ लगाते ही पेशेंट जो है वो चिल्ला पड़ेगा, इतनी ज्यादा टेंडरनेस होती है. अब इसमें भी डिफरेंट देखिए चीजें होती हैं. जब हम, जो सबसे पहले है कि एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स, अगर आपके पास पेशेंट कोई आता है उसके पास MRI भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो एक्यूट जो डिस्क प्रोलैप्स होते हैं उसके जो सडन सिम्टम्स आते हैं, आपके मैनेजमेंट से पहले ये पॉइंट रह गया था, जो सिम्टम्स उसके आते हैं सडन, एक तो उसके सिम्टम्स है कि वो क्या बताएगा आपको, क्या प्रेजेंट करेगा. वो आपको प्रेजेंट करेगा कि मैं सडनली जर्क आया, मुझे मेरे ने बेंड किया और मैं उठ नहीं पाया, एकदम से मुझे क्लिक से साउंड आई, दैट मीन्स इट्स अ एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स. अर्ली मॉर्निंग उसको पेन होगा, 4 या 5 बजे नींद में उसकी नींद खुल जाएगी उसको पेन से. वो इसलिए क्योंकि डिस्क जो है अपना वाटर जो है रेस्टिंग फेज में एब्जॉर्ब करती है, बट जब डिस्क बाहर निकलेगी तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इतना बढ़ जाएगा और वो वॉल को स्ट्राइक करेगी, तो पेन जो है वो लेटे हुए भी आएगा पर उसकी नींद खुल जाएगी, उसको इतना ज्यादा पेन होगा. कफिंग या स्नीजिंग, जब वो कफ करेगा या स्नीज करेगा उसको पेन होगा. इंस्टेबिलिटी है, जब भी वो कोई पोजीशन चेंज करेगा, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है,
चेंज होता है, जब आप पोजीशन चेंज करते हैं तो उसको इंस्टेबिलिटी लगेगी, मतलब जब भी वो कोई पोजीशन चेंज करेगा उसको पेन होगा, क्योंकि सारी मसल्स जो है आपकी स्पैज्म में आ गई है। फॉरवर्ड बेंडिंग या सिटिंग, जो अभी हमने ट्रंक फ्लेक्शन किया, फॉरवर्ड बेंडिंग या सिटिंग एक्सट्रीमली पेनफुल होगी, और कई बार वो पेशेंट आपको बताएगा कि जब वो एक्सटेंड कर रहा है तो उसको रिलीफ कर रहा है पेन, जब वो ये एक्यूट में है। जब क्रॉनिक डिस्क हो जाती है तो उसको एक्सटेंशन पेन करता है, क्योंकि कैनाल जो है वो नैरो होता जाता है। बट जब आपकी एक्यूट में आएगा तो उसको फॉरवर्ड फ्लेक्शन में बहुत ज्यादा पेन होगा। तो उसके बाद आप उसका SLR टेस्ट करके, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट करके देख सकते हैं। 35 टू 70 डिग्री में मोस्टली आपको उसको पैसिवली करेंगे, एक्टिवली पेशेंट नहीं कर पाएगा, पैसिवली आप टेस्ट कराएंगे तो उसको पेन होगा। तो मोस्टली 55 टू 70 डिग्री में, कई बार तो सिर्फ आप 40 डिग्री तक भी उठाएंगे उसको इतना पेन होगा, बट 70 डिग्री तक हम मान लेते हैं। उसके बाद जो है हमारी हैमस्ट्रिंग्स मसल्स काम करती है, उसके बाद हमारा डिस्क का काम नहीं आता, तो वो हम नहीं कराएंगे। तो इसीलिए ये अक्यूट का हो गया। आगे हम मैनेजमेंट में करते हैं कि हम कैसे करेंगे कि क्या कि कौन सा पेशेंट एक्यूट है और कौन सा क्रॉनिक है। एक्यूट में आपको फॉरवर्ड फ्लेक्शन में, क्योंकि फ्रेश डिस्क बल्ज हुई है तो आपको यूजुअली फ्लेक्शन में पेन आएगा, बट जैसे जैसे ये पेन क्रॉनिक होता जाएगा, बहुत पुराना होता जाएगा, क्रॉनिक होगा, तो क्या है, जो एक्सट्रूजन हुई है तो वो टिश्यू फाइब्रोस हो जाएगा। तो क्या होगा कि नर्व भी कंप्रेस होती है, क्योंकि स्पाइनल कैनाल भी हमारा कंप्रेस हो रहा है। तो पेशेंट को स्पाइन जब एक्सटेंशन में होगी तब पेन होगा। वो कहेगा मैं खड़ा हुआ हूं तो मुझे पेन हो रहा है, या मैं चल रहा हूं तो मुझे पेन हो रहा है। वो तभी होता है जब पुरानी चीज हो जाती है और नर्व कंप्रेशन हो रही है, कैनाल स्टेनोसिस हो रहा है, तब हमें जो है वो पेन हो। तो ये हम उसका पोस्चर चेक करेंगे, उसकी मूवमेंट चेक करेंगे, उसकी टेंडरनेस चेक करेंगे। गेट पैटर्न, क्योंकि वो IT बैंड भी टाइट हो जाता है तो हिप फ्लेक्शन जो है हमारी डिफिकल्ट हो जाती है, तो वो कॉम्पनसेटरी मूवमेंट्स करता है, तो हिप फ्लेक्शन स्पैस्टिसिटी हो जाती है, तो वो कॉम्पनसेट करके चलता है। तो उसका गेट पैटर्न आप देखेंगे वो बिल्कुल एक साइड कभी कैसे लिम्प कर रहा है, कभी कैसे कर रहा है। हिप अबडक्टर्स भी वीक हो जाते हैं, तो इसीलिए वो ऑपोजिट लेग को लिफ्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो अपना पेल्विस को स्टेबलाइज कर देते। देन देयर आर स्पेशल टेस्ट बाय विच यू कैन टेस्ट, बिकॉज टेस्ट हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना मुश्किल है, बिकॉज दिस इज सिंस इट्स अ वेबिनार। तो इसमें फोरामिनल कंप्रेशन या स्पर्लिंग फॉर सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन टेस्ट, ये सिर्फ आपको ये फोटो में दिखाया हुआ है। ये कंप्रेशन करेंगे आप, इसमें कंप्रेस करेंगे और इसमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। फिर अपर लिप टेंशन टेस्ट में सारे मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, शोल्डर अबडक्शन टेस्ट, टिनल साइन। इसकी फोटोग्राफ्स है, बट जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो यहाँ पे देना थोड़ा सा मुश्किल है। आपका लोअर लिम, और यूजुअली पेशेंट्स जो L4, L5, L5, S1 के ही आते हैं, तो ये आपको सबसे पहले हम SLR करते हैं, या हम स्लम्प टेस्ट करके देख लेते हैं इन सिटिंग पोजीशन, जो है नेक फ्लेक्स करके पेशेंट को एक्सटेंड करने के लिए नहीं कहते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स क्योंकि डर्माटोज, क्योंकि स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व है, तो सेंसरी इम्पेयरमेंट भी हो जाती है। दीज आर द सम एक्सरेज यू कैन सी हियर। ये देखिए, ये दोनों डिस्क देखिए इस लेवल पे ये बाहर आ रही है, यहाँ पे देखिए ये बाहर आ रही है XCT में। ये देखिए, this you can see clearly it is coming out, it is protruding out, this is not extrusion, this is protrusion. अब हमारा ट्रीटमेंट में क्या, अब हम we'll come to our treatment part which can be conservative और operative. ऑपरेटिव में हमारा कोई रोल नहीं है। कंजर्वेटिव में जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको रेस्ट करेंगे, रेस्ट बोलेंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक्स, देन थोड़ा सा हम उसको बेड रेस्ट बोलेंगे। अब ये हमने देखना है, जब हमारे पास अक्यूट केस में पेशेंट आएगा तो हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें करानी है बैक एक्सटेंशन, क्योंकि वो एक्यूट डिस्क बल्ज है। तो बैक एक्सटेंशन जब हम करवाएंगे तो डिस्क जो है वो अपनी वापस जगह पे आने की कोशिश करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैक एक्सटेंशन। अगर पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेन है, या तो हम उसको उल्टा प्रोन लाइन लेटा देंगे और खुद बैक एक्सटेंशन कराएंगे ऑन द एल्बोज। अगर वो नहीं तो सिंपली हम उसको उल्टा लेटाएंगे। उल्टा लेटाने से क्या है, उसकी स्पाइन जो है वो एक्सटेंशन में आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही ग्रेजुअली हम एक्सटेंशन, ये तो आपका अभी व्हेन आई ओपन माय व्हेन आई ऑन माय कैमरा मैं आपको बताऊंगी फिर से ये बैक एक्सटेंशन वाला पॉइंट। जब पेशेंट हमारे पास फ्रेश डिस्क बल्ज आ गया, पहली चीज हमने उसको बैक एक्सटेंशन करानी है। दूसरी चीज, क्योंकि हम बार बार वो मतलब 5 to 10 रेपिटेशंस एंड 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड, जब ये बार बार बैक एक्सटेंशन करेगा तो उसका SI जॉइंट भी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम कंटिन्यूअस एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो इसीलिए हम तब उसको साथ में SI जॉइंट के लिए नी टू चेस्ट भी कराएंगे और SLR भी कराएंगे। बट
अगर नर्व कंप्रेशन है, होल्ड है, तब हमारी एक्सरसाइज सेट डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्पाइनल कैनाल जो कॉम्प्रोमाइज है उसमें फेसेट जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, लिगामेंटम फ्लेवम भी टाइट हो सकता है, तो हमारा जो जो प्रोटोकॉल है एक्सरसाइज का वो डिफरेंट हो जाएगा। उसमें हमने क्या करना है, फ्लेक्शन एक्सरसाइज करानी है, नी टू चेस्ट करानी है, रोटेशन सीधे लेट के ही एक पैर को दूसरे पे रख के हिप रोटेशन, पेल्विक टिल्ट कराना है, वो भी पेशेंट को खुद अपना हाथ को पीछे रख के, सिर्फ जो पेल्विस मूव करेगा, बैक जो है वो बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, एंकल पंप्स कराएंगे इस तरीके। उसके बाद जब पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाएगा तब धीरे धीरे हम उसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो है, हमारी कैट एंड कैमल है, सुपरमैन है, दैट विल सी। ये हमारा ऑपरेटिव मैनेजमेंट है। जब मैंने जैसे आपको बताया कि बिल्कुल ही परसिस्टेंट पेन है, बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उसमें हम सर्जरी इन्वॉल्व करेंगे। होम ट्रीटमेंट में कोल्ड पैक डिपेंड्स ऑन द पेन इंटेंसिटी। अगर पेशेंट का जो है इन्फ्लेमेशन लग रही है, एक्यूट है, आप कोल्ड पैक देंगे। स्पैज्म है, मसल्स टाइट है, तो हॉट पैक देंगे लोअर बैक पे। और उसके बाद ये हमने देखना है, फिर जब हम फिजियोथेरेपी अपनी मैनेजमेंट करेंगे कि किस पोजीशन से पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है और किस में नहीं। अगर उसके सिम्टम्स एक्सटेंशन में लेस हो रहे हैं तो हम उसको जो है एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कराएंगे, अगर उसके सिम्टम्स वाइस वर्सा। ये हमारा आ गया कि ये हमने अपना ट्रीटमेंट प्लान हमें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिम्टम्स और पूरी असेसमेंट करने के बाद डिफरेंट टेस्ट और ये हम असेस करेंगे, उसके बाद ही जो है हम अपना ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बनाएंगे। These are simple stretches जो मैं अभी बात कर रही थी आपको। जब ये एक्यूट में नहीं है, जब पेशेंट बहुत ज्यादा पेन में आया है, जब लेटर ऑन जब हम उसका पेन कम हो गया, हमने उसकी स्ट्रेंथनिंग में फोकस करना है, तो हम उसको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच सिखा सकते हैं। कैट एंड कैमल इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आपको साइड प्लैंक्स हो गए, ये पेल्विक टिल्ट हो गई, पार्शियल कर्ल्स, एक्सटेंशन एक्सरसाइज तो हमने स्टार्ट करी ही है। ग्लूटियल हो गया स्ट्रेच, दैट इज नी टू चेस्ट, और वन आर्म सुपरमैन या क्वाड्रीपोड आर्म और लेग रेज। ये हो गई। पहले हम नॉर्मल पोजीशन, फिर ये एक आर्म और फिर ये एक लेग। इसमें ये शाइटिक पेन की हमारी करनी है। इसमें यही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्पाइनल फ्लेक्शन कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, अगर फ्लेक्शन से पेन बढ़ रहा है और पेरिफेरलाइजेशन ऑफ सिम्टम है। पेरिफेरलाइजेशन ऑफ सिम्टम मतलब आपका पेन सिर्फ लोअर बैक में था और वो नीचे जाना लग गया और ज्यादा होने लग गया, दैट इज पेरिफेरलाइजेशन। तो उसमें हमें वो एक्सरसाइज स्टॉप करनी है। सेंट्रलाइजेशन है कि आपका लेग में और बटक्स में पेन था और ऊपर बैक की तरफ आ रहा है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि किससे उसको रिलीफ मिल रहा है और किससे उसको, जिससे उसका पेन बढ़ रहा है, तो वी विल नॉट डू दैट एक्सरसाइज। बाकी मोडालिटीज में क्रायोथेरेपी अकॉर्डिंग टू द मसल स्पैज्म, अगर आपका स्पैज्म है तो टाइट है तो हॉट पैक, एंड इट्स एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन तो क्रायोथेरेपी, टेंस, अल्ट्रासोनिक, IFT। देन सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन में आपका मायोफेशियल रिलीज आता है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग इन आवर क्लिनिक मायोफेशियल रिलीज chiropractic, but that is on a later stage. But जो बेसिक, सो नाउ बेसिकली जो हमारे पास एक्यूट पेशेंट आता है डिस्क प्रोलैप्स का, तो उसमें हमने सबसे पहले ये करना है, उसको उल्टा लेटाना है और बैक एक्सटेंशन करानी है। अगर वो कर पाता है, मतलब हम करवाएंगे, दैट्स अ पैसिव थिंग, तो ठीक है। अगर वो नहीं कर पाता है तो हम उसको उल्टा लेटा के, पूरा उल्टा लेटने में भी उसको कई बार पेन होता है, तो हम उसको इस पोजीशन में पिलो रख के ऐसे लेटाएंगे, उससे भी आपकी स्पाइन जो है वो एक्सटेंशन में आएगी। या फिर यहाँ पे एब्डोमेन के नीचे हम पिलो दे देंगे, उससे क्या होगा कि उसका फिर से स्पाइन एक्सटेंशन में आएगी। फिर जब ग्रेजुअली उसका पेन ठीक होता जाएगा, तब हम उसके साथ नी टू चेस्ट और SLR ऐड करेंगे। बट अगर ये केस ये क्रॉनिक में है, अगर केस हमारे पास बाद में आ रहा है और उसको चलते हुए दर्द आ रहा है, खड़े होते हैं, बिकॉज दैट्स अ मेजर थिंग वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। जब हमारे स्पाइनल कैनाल, अगर उसको एक्सटेंशन में पेन आ रहा है, और अगर आप ऑलरेडी एक्सटेंशन में है, अब ये हमारा स्पाइनल कैनाल है, हमने और एक्सटेंशन कराई, तो कैनाल और नैरो होगा, उसके सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ेंगे, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच मैम। ओके, इट इज अ प्लेजर। मैम ने मुझे बोला एंड आई सेड डेफिनेटली, so it was a pleasure. Thank you ma'am for inviting me for this lecture. Ma'am, BCIP is so much grateful for your time and effort, so that you shared your thoughts and invited us. Thank you so much ma'am once again for your contribution. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you so much students. Thank you everyone. Okay, thank you all of you for listening. Okay, bye.